Hello student, good evening one and all. Today's lecture number 24, chapter number 4, laws of motion. Today is the last lecture of this lesson. So today we are going to solve the numerical based on center of mass and center of gravity. Already I have given the assignment in the typing form to all of you in PDF form में दिया आपको. So what I suggest you while watching my this video, so please refer the question bank of the जितने भी 9-10 क्वेश्चन है सो दैट वी कैन सेव आवर टाइम ऑफ राइटिंग ऑन द बोर्ड. ओके, तो बच्चों जस्ट गो थ्रू द फर्स्ट न्यूमेरिकल. चलो रीड करते पहला न्यूमेरिकल. द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 यूनिफॉर्म स्पीयर ऑफ मासेस 1 kg, 2 kg and 3 kg आर I minus j minus plus 2k 3i plus j cap minus k cap and minus I cap plus j cap minus k cap respectively with the distances expressed in meters. Find the position vector of the center of mass of the system. Okay, so we know the formula for center of mass, that is the sum of the masses of each particle and the distance from the reference point from the origin. Okay, and divide by the total mass of the system. That is our formula for the center of mass. So first of all let's write the given quantity. क्या क्या दिया है, right? So पहले लिख लेते given क्या क्या दिया है. So number 1, the mass of first particle, let that mass is let m1 is equal to 1 kg. Okay, then m2 is equal to 2 kg and m3 is equal to 3 kg. These are the masses of the sphere. Okay, and the position vector for this sphere, for first sphere r1 bar, which is given in terms of unit vector, in terms of orthogonal unit vector, right? So that is I cap minus j cap plus 2k cap meter. This is given in meter, right? And the mass given in kilogram. The second position vector r2 is equal to, that is also given, 3i cap plus j cap minus k cap whole bracket meter. Then third position vector, that is r3 bar is equal to, if it is a vector you must put arrow on its head अगर वो वेक्टर है तो, right? So third position vector is given minus I cap plus j cap minus k cap whole bracket meter. So from this is a very simple numerical. Already the data is given over here, right? Let the center of mass is be r. Okay, the coordinate of the center of mass is position of center of mass rcm. Capital RCM is the position vector for the center of mass of the 3 spheres. Okay, now the formula is summation of mi divided by summation of mi, where I is equal to 1 to n, divide by summation of mi. These are standard formula for the finding the position vector of center of mass. Okay, अभी यहाँ पे कितने दिए, 3 masses दिए. So we can write the sum of the product of the mass of each particle. Okay बच्चों, so let's write m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 divide by the total mass. Summation of mi is the total mass, that is the sum of the all masses. So it can be written as m1 plus m2 plus m3. So simple. After writing this we can write vector r, capital R cm. Cm stands for center of mass. Okay, so let's do the substitution here. What is m1? 1 multiplied by into r1, that is I cap minus j cap plus 2k cap, then 2 times 3i cap plus j cap minus k cap plus 3 times minus I cap plus j cap minus k cap, bracket complete, divide by the total mass. The total mass is 1 plus 2 plus 3
that will be 6. Okay, so just do the simple multiplication and simple addition of the unit vectors. So identical unit vector will be add, उनका addition होगा, right? So here let's simplify this. पहले bracket को remove कर लेते. So we can write I cap minus j cap plus 2k cap plus 3 to the 6 I cap plus 2j cap minus 2k cap plus minus 3 I cap plus 3j cap minus 3k cap divide by 6. So next step will be, now what we have to do, just underline the identical vectors I cap and this I cap. Okay, so 1 plus 6 7, 7 minus 3 4, so it is 4 I cap, then minus 1 plus 2, minus 1 plus 2 plus 1 plus 1 plus 3 plus 4 plus 4 j cap, then third unit vector k cap 2 minus 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा. ओके, बचेगा minus 3k cap डिवाइड बाय 6. सो दिस कैन बी रिटर्न एज, अभी यहाँ पे कुछ कॉमन निकलेगा, कुछ कॉमन नहीं निकलेगा. सो दिस कैन बी रिटर्न एज 4/6 I cap plus 4/6 j cap plus minus 3/6 k cap. Okay, then reduce into lowest term. This can be reduced into lowest term. How can we write? This will be 2 by 3 RCM is equal to RCM, position vector of center of mass. RCM is equal to 2/3 I cap plus 2/3 j cap minus 1/2 k cap. Let's check the answer. Yes, the answer is correct. 2/3 minus 1/2 k cap in meter. Okay, so position vector given in meter. So this is the correct answer. So just take a screenshot. Just solve systematically. कुछ भी difficult नहीं, बहुत simple है, right? So let's move on the next numerical number 2. आज हमको मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, राइट? नाउ लुक एट द सेकेंड न्यूमेरिकल. 2 स्पीयर्स ऑफ मासेस, मतलब यहाँ पे क्या करना होगा, 2 पार्टिकल सिस्टम यूज करना है. 2 स्पीयर ऑफ मासेस 2 kg and 3 kg हैव देयर centers 50 centimeter apart. The distance between the 2 sphere is given, right? Find the center of mass of the system. So we can use here 2 particle system to find the center of mass of 2 particle system. हमने डिराइव किया है, n particle system भी लिया है. ओके, तो बच्चों यहाँ पे पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे. व्हाट आर दी गिवन्स? द गिवन डेटा आर गिवन डेटा. सो m1 दिया है, m1 is 2 kg, देन m2 दिया है, m2 इज इक्वल टू 3 kg. 2 स्पीयर है और दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है r इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. ओके, अब यहाँ पे देखो जो मासेस दिए है, मासेस आर गिवन इन kg SI यूनिट, बट द डिस्टेंस गिवन इन CGS, सो वी नीड टू कन्वर्ट इनटू मीटर और SI यूनिट. तो SI में क्या आएगा, दिस विल बी 0.5 मीटर. ओके, सो हियर लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. पहले इमेजिन करेंगे डायग्राम. दिस इज 1, दिस इज 2, fine. So here this is m1, this is m2, and the distance between them, that is r, is equal to 0.5 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग पहले. So we will consider the, while drawing the diagram, we have to assume the position of, यहाँ पे coordinate axis लेना है, यहाँ पे origin लेना पड़ेगा. So we will take the origin as a, कोई भी एक coordinate लेंगे, कोई भी एक बॉडी लेंगे जिसका हम origin कंसिडर करेंगे. So let's draw the origin here. Okay, so what are the coordinate of this, and this will be the second point, second body. Okay, the coordinate of this will be, इसका x coordinate क्या होगा, इसका x coordinate होगा 0, y coordinate भी 0. What is the x coordinate of this? x coordinate का मतलब होता है the distance from y axis. अभी ये जो पॉइंट है,
ओके दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस है 0.5 ओके मीटर. What would be its y coordinate which is located on the x axis. तो जो भी पॉइंट x एक्सिस पे लोकेट है तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा 0 होगा. तो दिस विल बी 0. तो बहुत सिंपल हो गया. मतलब वी गॉट हियर दिस विल बी x1 y1, दिस कैन बी टेकन एज x2 y2 और m1 m2 दिया है. ओके सो वी कैन यूज द फॉर्मूला हियर राइट. जो हमारा वो फॉर्मूला है द सेम फॉर्मूला कैन बी यूज ओवर हियर राइट. So let's find the center of mass. Okay, so the center of mass to be taken as right, separation of the molecule. So capital X coordinate निकालेंगे. X coordinate will be m1 x1 plus m2 x2 divide by total mass m1 plus m2. Fine. अब यहाँ पे x1 0 है. Okay, but x1 is 0 here. x1 is equal to 0. राइट y1 भी 0 है, यहाँ पे y1 भी 0 है राइट. तो यहाँ पे क्या आएगा m1 कितना है, m1 इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस m2 कितना है 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है 2 प्लस 3 5. सो कैपिटल X इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी दिस इज 0 प्लस 5 3 15 1.5 डिवाइड बाय 5. ओके तो क्या आएगा इसका 3 बाई 15 1.5 करेक्ट. सो दिस विल बी 0.3 मीटर. ओके सो x विल बी 0.3 मीटर आया मतलब 30 सेंटीमीटर. ओके सो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 30 सेंटीमीटर राइट फ्रॉम द ओरिजिन. ओके सो दिस इज व्हाट दी. तो वो दैट सेंटर ऑफ मास लोकेटेड समवेयर हियर, यहाँ पे होगा वो इसका जो सेंटर ऑफ मास है दैट विल बी लोकेटेड हियर. सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0.3. ओके अब ये एक्स एक्सिस पे राइट. दिस लाइन जॉइनिंग जो है दैट लाइन जॉइनिंग इज अलोंग द एक्स एक्सिस. तो देयर वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0. तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा. सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0.3 मीटर एंड 0. सो दिस इज द आंसर. Take a screenshot. Okay, let's go on the next. So let's go on the third numerical in the question bank which I have given to you. Look at the question bank. 4 masses small m, 2m, 3m and 4m are fixed at the corners of square of the side D. Where is the center of mass of this system? Right. तो एक square draw करना है यहाँ पे आपको. So let's draw the square here. So बच्चों this is the square. स्क्वायर मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, उतना तो पक्का है. सो लेट्स मार्क द पॉइंट समवेयर हियर. लेट आई एम टेकिंग दिस पॉइंट ओ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ओके ऑफ माई ओन कन्वीनियंट. लेट आई एम टेकिंग द मास m1 इज हियर. ओके सो m1 मास लोकेटेड हियर, हियर m2 मास लोकेटेड हियर, mass of the particle B is m2, the m3 mass located here m3 and the last mass which is located at m4 here. फाइन. तो अभी यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्या है कि हमको जो भी डायग्राम है ज्योमेट्रिकल डायग्राम वी हैव टू एज्यूम द ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट कुछ लेना है राइट. सो वी हैव टू ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस. सो व्हाट आई विल टेक दिस ओ ए एज अ वाई एक्सिस ओके एंड दिस ओ सी विल बी द एक्स एक्सिस. मतलब ओ एज अ ओरिजिन लेना है आपको यहाँ पे. सी दिस m4 जहाँ पे लोकेट है, लेट दिस m4 इज लोकेटेड हियर. आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज अ ओरिजिन. आई एम कैन एज्यूम दैट कोई भी पॉइंट ले सकते, जरूर नहीं कि आपने m1 मैंने ऊपर लिया, आप m1 यहाँ से भी ले सकते, m1 m2 m3 m4 कैसे भी ले सकते. ओके
so it will show accordingly the position of center of mass. Okay, but I am taking m1 here, m2 here, m3 here, m4 here, right? लास्ट में आंसर में वैसे बताना है कि एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा. ओके, तो जनरली ज्योमेट्री फिगर जो है उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में होता है, लेकिन यहाँ पे सबका मास अलग अलग है. तो इतना तो कंसेप्ट है हमारे दिमाग में कि जो पार्टिकल का मास ज़्यादा है उसके तरफ सेंटर ऑफ मास झुकेगा. समझ में बात में आ रही? मान रहे ऑल दीज पार्टिकल हैविंग द सेम मास, राइट, एंड इट इज दे आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर. अगर सबका मास सेम है तो डेफिनेटली द पोजिशन ऑफ center of mass will be at the geometrical center or the point of intersection of the diagonal, point of intersection of the diagonal of the square, center पे होगा. But here the masses of each particle is different. Okay, the mass of this particle m1 is small m. इसका मास कितना m है, इसका मास कितना है 2m है, और इसका मास कितना है 3m है, and the mass of this particle is 4m. Right? So this is what the masses are given, right? और द जो डिस्टेंस है, लेट दैट डिस्टेंस बी d. ये डिस्टेंस कितना है d दिया है, हमने एज्यूम किया है, बट दैट इज गिवन आई थिंक 1 मीटर, राइट? स्क्वायर ऑफ द 4 मीटर आर फिक्स एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ द साइड d. अच्छा, साइड d दिया है. ओके ओके, तो साइड d इज गिवन. दे आर नॉट मेंशन दैट कि हाउ मच इट इज. ओके, सो सिंपली वी कैन एज्यूम दैट the distance is small d, not 1 meter. Okay, so they have given this is small d. The side of square is small d. Fine. Okay, तो अभी हमको फाइंड करना है, राइट? सो गिवन लिख लेते फटाफट. गिवन तो ऑलरेडी दिया है. m1 इज इक्वल टू स्मॉल m, m2 इज इक्वल टू 2m, एंड m3 इज इक्वल टू 3m, एंड m4 इज 4m. फाइन. Now what are the coordinate of this? इसके coordinate 0 0 हो गए. What are the coordinate of this? इसके coordinate क्या होंगे? The coordinate of this will be, this point is at what distance from the y-axis? It is at d distance, d and 0. What are the coordinate of this? इसके coordinate क्या होंगे? The coordinate of this will be 0 0 and this is at a distance from d, 0 d आएगा, और इसको जो coordinate होंगे that will be the different. इसके coordinate अलग होंगे, right? So this point is located, ये this point from y axis से कितने distance पे? d पे. Now this at what distance from the x axis? d. तो d आएगा. तो coordinate of this सबका आ गया. I have written the coordinate of all the points. I have marked according to the origin and all. Okay, सब में मैंने mark कर लिया. अभी let us use the coordinates formula. Okay, the position, the coordinate of center of mass are coordinate of center of mass are coordinate of center of mass of a system, right? Will be, suppose x coordinate will be m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus m4 x4 divided by the total mass m1 plus m2 plus m3 plus m4. This is the formula. ऐसे y coordinate को y लिखने होंगे. Okay, simply we will take from y. So capital X is equal to x coordinate of the center of mass for this entire system will be, अभी m1 कितना है बच्चों? स्मॉल m. x1 कितना है यहाँ पे? x1 is 0 प्लस m2 कितना है? m2 is 2m multiplied by x2. This will be the x2. Okay, ये x1 x2 x3 x4 ऐसे राइट. सॉरी, यहाँ पे x1 इज x1 0 है, और x2 कितना है? x2 विल बी d प्लस m3 कितना है? 3 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे क्या आएगा? x3, इसका x3 आएगा, तो x3 विल बी स्मॉल d. ओके, प्लस m4 कितना है? m4 इज 4m मल्टीप्लाइड बाय 0. x4 यहाँ पे हमने क्या लिया? 0 लिया है. तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट O पार्टिकल 4 डिवाइड बाय टोटल मास कितना आएगा? m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10. सो द आंसर विल बी, ये 0 हो जाएगा, ये कितना आएगा? 2md प्लस ये 3m आएगा, 2 प्लस 3 5md डिवाइड बाय 10m
तो mm कट हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा, तो आंसर इज d/2। ओके, तो d/2 आएगा इसका आंसर, जो x कोऑर्डिनेट है दैट विल बी d/2, करेक्ट। ओके, तो मतलब यहाँ पे समवेयर हियर इसका याद आएगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे कहीं पे लोकेट होगा, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस विल बी d/2। अभी y कोऑर्डिनेट निकालना है, लेट अस फाइंड द y कोऑर्डिनेट। Let's find the y coordinate. Y is equal to m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 plus m4 y4 divided by total mass m1 plus m2 plus m3 plus m4. Okay, so let's do the substitution of the y1 y2 y3 prices. अभी पहला पार्टिकल लेंगे m1 का, उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, स्मॉल d। ओके, सो स्मॉल m इंटू स्मॉल d प्लस m2 कितना है 2m इंटू तो y2 इज स्मॉल d प्लस m3 कितना बच्चों 3m मल्टीप्लाइड बाय y3 यहाँ पे 0 है, सो विच इज 0 प्लस m4 4m मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये भी 0 आ जाएगा, डिवाइड बाय टोटल मास ऑलरेडी हमने उधर कैलकुलेट किया है, दैट इज 10m। आई विल टेक डायरेक्टली। ओके फाइन, वो 10m कैसे आया, फ्रॉम दिस टोटल मास ऑफ द सिस्टम। नाउ दिस विल बी md प्लस 2md की 2 + 1 कितना हुआ 3 और 0 हो जाएगा, सो 3md डिवाइड बाय 10m, तो mm कट हो जाएगा, सो दिस विल बी 3/10d विच इज इक्वल टू 0.3d। ओके, तो y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस, y कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस मतलब समवेयर हियर, यहाँ पे ये x एक्सिस है, तो ये सेंटर पे नहीं आएगा, लेकिन ये आधा आएगा, तो इट विल बी समवेयर हियर, यहाँ पे दिस विल द पोजीशन। ओके, सेंटर पे नहीं आएगा। सी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी कैपिटल X कैपिटल Y। ओके, so what are its coordinate of the center of mass, x coordinate is d/2 मतलब 0.5। okay, so this is 0.5 what is the meaning of x coordinate, distance from y axis, तो y axis से कितने डिस्टेंस पे होगा, ये पूरा कितना है d है। ओके, तो इसका आधा आएगा वो d/2, so this will be d/2, यहाँ पे I will write d/2, this will be d/2। ओके, एंड y कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 0.3, तो 0.3 टाइम्स d, 0.3 टाइम्स d। सो दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। आ गया समझने, वेरी सिंपल टेक्निक, कुछ नहीं, कोई भी ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी डायग्राम हो, आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि ओरिजिन पहले कंसिडर करना है। कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक कॉर्नर ले लो ज्योमेट्री फिगर का, और उसको ओरिजिन कंसिडर कर दो। एट वंस यू आर कंसिडरिंग ओरिजिन, जस्ट टेक द डिस्टेंस कि बाकी के जो पार्टिकल्स है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, राइट, वो कैलकुलेट करो, और उसके बाद उसको x1 m1 x1 ले लो, m2 x2 ले लो, जो भी x1 x2 का कोऑर्डिनेट है वो ले लो, और अपना फॉर्मूला यूज़ करो, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो अभी फिफ्थ न्यूमेरिकल जो है दैट इज बेस्ड ऑन ट्राइंगल, राइट, सेम कंसेप्ट यूज करना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलो लेट्स सॉल्व फिफ्थ वन। Look at the center of mass of the system of 3 particles of masses, right? तो masses दिए यहाँ पे, लो लिख लेते हैं, m1 is equal to 1 kg, then m2 is equal to 2 kg, the third mass is given m3 is equal to 3 kg। 3 masses आ गए, which are placed at the corners of an equilateral triangle of side 1 meter। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है यहाँ पे, तो आई विल कंसिडर दिस
इक्विलैटरल ट्रायंगल, इंश्योर दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। लेट दिस इज ए, इसको मैं ए ले लेता हूँ और इसको ओ ले लेता हूँ, वो ज़रा अच्छा रहेगा ओरिजिन कंसिडर करने को। देन दिस विल बी ए, दिस विल बी बी, फाइन। लेट दिस पार्टिकल इज m1, इसको मैंने यहाँ पे जो पार्टिकल है इसका मास m1 लिया। लेट द पार्टिकल एट दिस वर्टाइसेस दैट इज m2, लेट द मास ऑफ दिस पार्टिकल m3, ओके। सो दिस इज 1 kg, ए 1 kg दिया है, दिस इज 2 kg एंड थर्ड वन इज 3 kg, राइट। आर ए प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 मीटर, लेकिन यहाँ पे साइड दिया है, ओके। सो द दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर, the side of each side of triangle, each side of triangle is 1 meter, तो this is also 1 meter, ये भी 1 मीटर आएगा, तो ये भी 1 मीटर आएगा। बहुत आसान हो जाता है अगर मान लो साइड दिया है, राइट। अब यहाँ पे क्या करें हम लोग, वी विल टेक सम पॉइंट, कुछ तो एक तो पॉइंट बी ले लो या एक तो पॉइंट ओ ले लो, किसी को तो ओरिजिन यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। तो फॉर माई कन्वीनियंस, ओके, व्हाट आई विल प्रेफर, आई विल कंसिडर दिस पॉइंट ओ एज ओरिजिन। तो यहाँ पे पहले ड्रॉ करेंगे, लेट द ड्रॉ द वाई एक्सिस, ओके, एंड लेट दिस ओ बी टू बी कंसिडर एज एक्स एक्सिस। ओ बी को हम एक्स एक्सिस कंसिडर कर सकते हैं, फाइन। अगर ऐसा थोड़ा एजम्पशन कर लिया ना तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे बच्चों, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन विल बी 0 0, राइट। इसके कोऑर्डिनेट मिल गया हमको। सो दिस कोऑर्डिनेट विल बी क्या आएगा, x1 y1 लिया, द कोऑर्डिनेट ऑफ O इज x1 y1। नाउ व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ B, क्योंकि B लोकेट ऑन द x एक्सिस, B कहाँ पे लोकेट है, x एक्सिस पे, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ B विल बी लेट दैट इज x2 y2, लेकिन x2 क्या होगा, x2 मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो ये पॉइंट y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, 1 मीटर पे, तो यहाँ पे आएगा 1। और y कोऑर्डिनेट जो है, द y कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस विल बी 0, सो वो 0 आएगा, बिकॉज y कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है, द मीनिंग ऑफ y कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो दैट पॉइंट इज लोकेटेड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, 0, राइट। ये कोऑर्डिनेट में अगर आपने गड़बड़ कर दिया ना तो आपका न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा। सो प्लीज़ बी कॉशियस, सो घाई मत करने का, थोड़ा सा आराम से सब कोऑर्डिनेट को लोकेट कर देने का एंड उसके बाद ये करने का। अभी हमारी बारी है, वी हैव टू लोकेट वी हैव टू गिव द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, राइट। तो दिस पॉइंट ए, द मास m3 लोकेटेड एट द नेक्स्ट वर्टाइसेस ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x, ओके। सो दिस पॉइंट इज लोकेटेड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, राइट। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये मिडल में आएगा, राइट। सो दिस विल बी 0.5 0.5, लेट दिस पॉइंट c, इसको मैं c ले लेता हूँ, बराबर। अभी इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, इसके ये जो x3 y3 आएगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पार्टिकल 2 विल बी x2 y2। हाउ कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट x2 y2, x2 मतलब x2 विल बी, x2 इज इक्वल टू एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ओ x2 पॉइंट y एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे, विच इज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 0.5, ओके, मीटर। Then what are the y2 coordinate, y2 मतलब this point is at what distance from the x axis, okay, ये कितना है, this is parallel to this, okay, लेकिन यहाँ पे ये slanting दिया है, right। तो बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर ये जो भी है यहाँ पे this is right angle triangle, right। तो एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल में यहाँ पे एंगल कितना होता है, how much this angle, this is 60 डिग्री, ये भी कितना होगा 60 डिग्री, ओके। हमको निकालना है AC, अभी AC फाइंड करना है तो क्या करोगे, यू हैव टू अप्लाई योर ज्योमेट्री, राइट, ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे। तो बाय यूजिंग ज्योमेट्री sin 60 इज इक्वल टू क्या आएगा, sin 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड दैट इज AC, अपोजिट साइड AC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस OA, हाइपोटेन्यूस OA, बराबर। तो AC कितना आएगा बच्चों, AC इज इक्वल टू OA sin 60, बराबर। तो AC इज इक्वल टू
ए सी इज इक्वल टू ओ ए कितना है, लेकिन ओ ए इज 1 मीटर, तो यहाँ पे मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूँगा। साइन 60 मतलब √3/2, √3/2 मतलब 0.866, वो याद रखने का, ओके, 0.8660. So this is the value of AC. So what are the coordinate of this A? A will be, पहला coordinate है हमारा x2 0.5 और जो y2 coordinate है that y2 coordinate will be 0.866. So coordinate of coordinate को सिंबल ऐसा था 3 लाइन में डालने का, इसके जो coordinates है this will be 0.5 और 0.866. okay. The coordinate of B can be located like this 1 0. The coordinate of O will be 0 0. बराबर. अभी we have to find the center of mass of this system, equilateral system. तो सेंटर हमारा फॉर्मूला क्या है, x coordinate center of mass of x coordinate is equal to क्या है, m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 डिवाइड बाय टोटल मास कितना आएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 विच इज इक्वल टू, ओके. तो यहाँ पे m1 कितना है, m1 हमने यहाँ पे लिया है 1 kg, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस m2 कितना है बच्चों, m2 इज 2 मल्टीप्लाइड बाय x2 कोऑर्डिनेट कितना है, x2 0.5 प्लस m3 कितना है 3 मल्टीप्लाइड बाय इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 1 डिवाइड बाय टोटल मास, यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 टोटल मास कितना आएगा 6 kg, ओके. उसको लिख लेते चलो 1 प्लस 2 प्लस 3, ओके. सो x cm इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास ऑफ x कोऑर्डिनेट, राइट, x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी, अभी इसका क्या आएगा 0 प्लस ये कितना आएगा 5 to the 10 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 6 4/6 विच इज 2/3, ओके, 2/3 आएगा 2/3 कोऑर्डिनेट. देन y cm इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 विच कैन बी रिटन एज, ओके. चलो इधर ही सॉल्व करते. तो यहाँ पे आएगा my कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास ऑफ y कोऑर्डिनेट m1 कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाय, अभी y1 यहाँ पे कितना है 0, y1 इज 0 प्लस m2 इज 2 मल्टीप्लाइड बाय y2 कितना है 0.866 प्लस m3 3 मल्टीप्लाइड बाय y3 कितना है यहाँ पे y3 इज 0, ओके. सो दिस विल बी 0 डिवाइड बाय 6, सो दिस कैन बी रिटन एज, ये 0 हो जाएगा, इसका डबल कितना आएगा 0.866 का, दैट विल बी 1.73, ओके, या फिर 2 1 जा 2 3 जा, सो 0.866 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 0.32 जा 6 बचा 2 3 8 जा 24 बचा 2 3 8 जा 24, राइट. So this is the y coordinate, okay. So what are the coordinate of center of mass? X coordinate is how much we got, x is 2/3, okay, x is 2/3 मतलब 0.66 और ये आएगा, okay. So these are the coordinate, yes 2.887. So take a screenshot ले लो इसका. नेक्स्ट शायद सॉल्व न्यूमेरिकल है टेक्स्ट बुक में, आई थिंक सो, आई हैव नॉट मेंशन हियर, बट इट विल बी सॉल्व न्यूमेरिकल इन द टेक्स्ट बुक.
ओके, सो 6 न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों. 6 numerical. Yes, it is unsolved from the textbook, right? Unsolved है, not solved. It is unsolved from the text. 4 यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब्स. आपका जो PDF फाइल है टेक्स्ट बुक में वो देख लो, उसमें आपको अनसॉल्व न्यूमेरिकल मिल जाएगा. लास्ट में दिया होगा, ये एक्सरसाइज के लास्ट में दिया है. 4 यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब्स. क्यूब्स मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट? ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब एक्स वाई जेड सब तीनों सेम होगा. of all edges are equal, right? Cubes of solid cubes of edges 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter and 40 centimeter are kept on the ground touching each other in order. तो पहले 10 सेंटीमीटर क्यूब, फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब, 30 सेंटीमीटर क्यूब, देन 40 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे चारों क्यूब एक लाइन में उसको लगा दिए और टच करें एक दूसरे ऑन द ग्राउंड, राइट? टचिंग ऑन द ग्राउंड, राइट? टचिंग ईच अदर. लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ देयर सिस्टम. तो पहले यहाँ पे हमको डायग्राम पहले इमेजिन करना पड़ेगा, राइट? तो क्या करेंगे? वी विल ड्रॉ दी फर्स्ट क्यूब का जो बैक साइड है वो मुझे दिखेगा नहीं, मैं सिर्फ 2 डायमेंशन ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, राइट? थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा, टू टेक डाउन, थोड़ा बड़ा आएगा वो. थोड़ा छोटा ड्रॉ करना पड़ेगा. ये 10 सेंटीमीटर वाला है, ओके? ये भी 10 सेंटीमीटर है और वो साइड भी 10 सेंटीमीटर है. देन नेक्स्ट विल बी लाइक दिस. उसका डबल लेने का थोड़ा सा, ओके? ये 20 सेंटीमीटर आएगा. एक्चुअली इट नॉट रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल नहीं, इट इज़ अ क्यूब है, इतना याद रखो. तो इधर भी ड्रॉ करना पड़ेगा बड़ा, लेकिन मेरे पास जगह नहीं उतना. ओके, सो दिस इज 30 सेंटीमीटर. एक मिनट है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर. मेरा तो ये कितना होगा? अभी यहाँ पे कोई भी एक ओरिजिन, मैं यहाँ पे ओरिजिन कंसिडर करता हूँ अलॉन्ग दिस पॉइंट. तो आई विल ड्रॉ द ओरिजिन हियर, ओके? तो सो दैट आई विल फाइंड वेरी इजी टू सॉल्व. तो इसको मैं एक एक्सिस ले लेता हूँ. दिस इज वाई एक्सिस, दिस विल बी वाई एक्सिस, फाइन. सो अगर इफ आई एम टेकिंग दिस जीरो, इसको अगर जीरो लिया तो ये कितना होगा बच्चों? दिस विल बी 10 और ये 20 इसमें ऐड कर दो. तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी 30. 10 + 20 30. अभी इसमें 30 और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट 60, बराबर. अभी इसमें 40 ऐड कर दो, सो दिस पॉइंट विल बी 100, बराबर. अभी एक क्यूब है, तो क्यूब मतलब सिमेट्रिक बॉडी है, राइट? तो क्यूब का जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा सेंटर पे होगा. तो मैं सबका पहले सेंटर ऑफ मास लोकेट कर देता हूँ, तो हमेशा सेंटर पे होगा ही एट दिस पॉइंट. तो इसका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है ये कितना होगा? 5, बराबर. तो इधर भी ले लेते, ये भी 10 होगा, तो ये कितना होगा? दिस विल बी 20. तो ये कितना होगा? दिस विल बी 30, ओके? और ऊपर रहेगा यहाँ पे, तो ये आएगा 40. देखो कोऑर्डिनेट अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या आएगा? 10, 20, 30, 40, लेकिन इधर बढ़ेगा, इधर 100 तक गया है. इतना याद रखना, ओके? यहाँ पे कोई गड़बड़ मत करना. अभी ये जो सेकंड क्यूब है, सेकंड क्यूब का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? बीच में होगा, राइट? तो यहाँ पे आएगा. तो ये जो ये कितना है? 20, ये 20 है, तो ये कितना होगा? ये 10 होगा, राइट? तो यहाँ पे 10 पे आएगा वो, दिस विल बी हियर. तो यहाँ पे 10 पे आएगा. 20 का आधा क्या आएगा? 10 आएगा, राइट? अभी 30 लिया, 30 का ये टोटल कितना है? 30, ये भी 30 है, तो इसका 30 का 50% मतलब 15 आएगा, तो यहाँ पे आएगा. तो आई विल मार्क विथ सम अदर कलर, लाल लेता हूँ मैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. तो इट विल बी समवेयर हियर, ओके? तो ये जो डिस्टेंस है, तो ये 15 आएगा, और ये जो डिस्टेंस है ये 10 आएगा,
और ये इसका है, ये 5 आएगा सेंटर ऑफ मास फॉर द फर्स्ट क्यूब। ओके, अभी लास्ट वाला क्यूब है, उसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, मिडल में होगा। तो ये 40 है, ये भी 40 आएगा। तो 40 मतलब उसका आधा कितना होगा, 20। तो इट विल बी हियर। राइट, 40 का आधा 20, तो यहाँ पे ये आ गए। ओके, सो लेट्स मार्क दिस। इसका मास लिया, अभी इसका मास हमको पहले यहाँ पे रेशियो लेना पड़ेगा। राइट, सो द लेंथ इज L1 कितना है यहाँ पे, L1 विल बी 10। ओके, सो लेंथ ऑफ फर्स्ट क्यूब विल बी 10, लेंथ ऑफ द सेकेंड क्यूब इज, और साइड ऑफ द सेकेंड क्यूब इज 20, द साइड ऑफ थर्ड क्यूब इज इट इज 30, एंड द साइड ऑफ फोर्थ क्यूब इज इट इज 40। बराबर। तो अगर मैं इफ आई टेक द रेशियो L2 बाई L1 अगर लिया, ओके, रेशियो ऑफ L2 अपॉन L1, राइट, so that will be 20 upon 10, 0 0 कट विच इज 2। लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो वॉल्यूम भी फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, L2 अपॉन L1 होल ब्रैकेट क्यूब। राइट, तो होल ब्रैकेट क्यूब क्या आएगा, दैट विल बी 2 क्यूब विच इज इक्वल टू 8। ओके, देन L3 अपॉन L1 इन टर्म्स ऑफ पहले से ही कंपेयर करना है। सो दिस विल बी 30 divided by 10 which is equal to 3, then L3 upon L1 whole bracket cube which is equal to 3 cube which is equal to 27, then L4 upon L1 which will be 40 divided by 10 which is equal to 4. Okay, so L4 upon L1 whole bracket cube, because the volume of the cube is L लेंथ ऑफ क्यूब, राइट, क्यूब ऑफ लेंथ जो भी है, राइट। तो यहाँ पे 4 का क्यूब विच विल बी 64। बराबर। तो यहाँ पे अगर इफ आई टेक द मास, तो मास के यहाँ पे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मास, मास इक्वल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले क्यूब, ऑल द क्यूब्स ऑफ द सेम डेंसिटी, द रो, राइट, लेट द डेंसिटी ऑफ द क्यूब इज रो, राइट। तो लेट द डेंसिटी of each cube is rho, that is same density, uniform material है ना, सबका मटेरियल सेम है, राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे अगर मैंने रेशियो लिया, मास का अगर रेशियो लिया, राइट, तो जो भी डेंसिटी हो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम में भी लेंथ का क्यूब। ओके, सो यहाँ पे जो भी है वो अगर रेशियो लेके अगर किया, राइट, बाय टेकिंग रेशियो ऑफ मास ऑफ ईच, राइट, तो यहाँ पे M1 विल बी स्मॉल m, मास ऑफ फर्स्ट क्यूब विल बी स्मॉल m आएगा। देन द M2 विल बी इन टर्म्स ऑफ इसके मल्टीपल में आएगा, ये सब इसके मल्टीपल में आएगा। ओके, तो इसका मास अगर m आएगा तो इसका मास आएगा 8m। आप बोलेंगे 8m कहाँ से आया, बराबर है आपका कुछ सवाल। यहाँ पे जो मैंने लिया है रेशो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट, वॉल्यूम क्या है L क्यूब, 8 टाइम्स ज़्यादा है, तो वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ द सेकेंड क्यूब विल बी 8m। द मास ऑफ द थर्ड क्यूब M3, दिस इज M2 इज इक्वल टू 8m, ये क्या आएगा M3 इज इक्वल टू व्हाट इज M3 मतलब L3, यहाँ पे कितना आएगा 27 टाइम्स m। द मास ऑफ थर्ड क्यूब विल बी 27 टाइम्स m, और M4 जो है दैट विल बी 64 टाइम्स m बाय टेकिंग दिस रेशियो। अंडरस्टैंड, कोई जुगाड़ नहीं किया यहाँ पे, एज पर द फॉर्मूला हमने इसको लिखा है। तो M2 इज इक्वल टू 8m, ओके, देन M3 इज इक्वल टू 27 टाइम्स मास ऑफ द फर्स्ट क्यूब, देन M4 इज इक्वल टू दी 64 टाइम्स द मास ऑफ द फर्स्ट क्यूब। ये कंपैरिजन हमने कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम में ये कंपैरिजन है, डेंसिटी सेम है, तो वी कैन कंपेयर देयर मास आल्सो। ओके, सो लेट्स फाइंड, तो मासेस मिलेंगे हमको। अभी फाइंड करना है हमको टोटल मास। तो टोटल मास कितना आएगा, समेशन ऑफ एम आई दैट इज टोटल मास ऑफ सिस्टम, टोटल मास ऑफ सिस्टम। तो टोटल मास ऑफ सिस्टम क्या आएगा बच्चों, m प्लस 8m प्लस 27m
प्लस 64m. आई थिंक दिस विल बी 27 और 8 कितने हुए 35 प्लस 1 36 प्लस 64, सो इट इज़ 100m आएगा. दिस इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ द क्यूब 1. ओके, उसके बाद अभी हम लोकेट करेंगे कि कोऑर्डिनेट जो है x1 x2 x3 x4 कोऑर्डिनेट करेंगे. सो लेट्स लोकेट द कोऑर्डिनेट x1 इज इक्वल टू. ओके, अभी देखो पहला जो सेंटर ऑफ मास है x1 का कोऑर्डिनेट ये आएगा x1 y1 बराबर. तो x1 कितना आएगा बच्चों 5, तो x1 विल बी 5 राइट. देन सेंटीमीटर आएगा, वो सेंटीमीटर लेना हमने स्टार्टिंग में, तो इट विल बी सेंटीमीटर जो यूनिट रखो. देन सेकेंड क्या आएगा x2 विल बी करस्पॉन्डिंग टू दिस x2 इज लोकेटेड एट, ये कितना होगा ये कितना है, ये टोटल 10 to 20, तो बीच में कितना आएगा 15 आएगा नहीं, तो ये 15 और ये 15 और 10 25, तो दिस पॉइंट इज लोकेटेड एट 25 सेंटीमीटर. ओके, 10 प्लस 15, सो दिस विल बी 25 बराबर. अभी लेट अस लोकेट दिस पॉइंट. तो ये कितना है, दिस इज समथिंग, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है क्या, सिर्फ 20. इसका मिडल पॉइंट जो है, मिडल पॉइंट इसका ये इधर से ऐड होगा ना, बराबर है 30. सो मिड पॉइंट विल बी, दिस विल बी, अच्छा ये 20 ना, तो ये 20 आएगा बराबर, सॉरी ये 20 आएगा, तो ये 30 है, तो ये 45 आएगा, और ये 40 है, तो 40 और 20 ये 80 आएगा बराबर. कोई फाइन, समझ में आया. वापस मैं समझाता हूँ. लेंथ ऑफ साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब कितना है 10, तो इसका मिड पॉइंट कितना आएगा 5, सही है. साइड ऑफ द सेकेंड क्यूब कितना है 20, उसका मिड पॉइंट क्या आएगा बच्चों, ये 10 और ये 10, ये 20 आएगा अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. बी साइड ऑफ द थर्ड क्यूब कितना है 30 का आधा कितना हुआ 15 15 प्लस 30 45. अभी यहाँ पे देखो 40 है साइड ऑफ द फोर्थ क्यूब, तो 40 का आधा कितना हुआ 20, सो ये 20 प्लस ये 60, दैट इज 80. सो दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द दिस सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस, जो हमको लोकेट करना है. तो x1 कितना आएगा, x1 विल बी 5, तो x2 कितना आएगा, x2 विल बी 20, देन x3 इज इक्वल टू 45, देन x4 इज इक्वल टू 80. ओके, तो अभी फाइंड करते हैं x कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं. अभी लेट अस फाइंड x कोऑर्डिनेट. तो x कोऑर्डिनेट विल बी xcm इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हमारा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइड बाय टोटल मास समेशन ऑफ mi. तो टोटल मास हमने निकाला है, टोटल मास विल बी 100m. ओके, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस. अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे. m1 कितना है, द मास ऑफ द फर्स्ट क्यूब विल बी दैट इज स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय x1 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 2m नहीं सॉरी इट इज 8m, m2 इज 8m मल्टीप्लाइड बाय x2 कितना है, x2 इज 20 प्लस m3 कितना है 27 टाइम्स m मल्टीप्लाइड बाय x3 कितना है 45, ओके, प्लस m4 कितना है 64m मल्टीप्लाइड बाय x4 कितना है लेकिन 80 डिवाइड बाय 100. ओके, तो इसको सब सॉल्व करो आप. ये कितना आएगा 5m प्लस 8 to the 16 160m प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 27 गुणिले 45 1215 12 15m प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 5120m डिवाइड बाय 100m. तो यहाँ पे ऊपर वाला m निकल जाएगा, रेशो है ना, तो m में कट हो जाएगा. तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 6500 डिवाइड बाय 100. ओके, तो 0 कट, द आंसर इज 65.
तो एक्स एक्सिस से 65 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया है, राइट, व्हाट आर दी डायमेंशन दिया हुआ गिवन, डायमेंशन क्या दिया है सेंटीमीटर, तो 65 सेंटीमीटर पे मतलब यहाँ पे समवेयर हियर, ओके, एक्स एक्सिस से यहाँ पे समवेयर इससे करस्पॉन्डिंग आएगा वही। अभी वाई कोऑर्डिनेट निकालना हमको, राइट, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट के लिए जगह नहीं यहाँ पे। सो व्हाट यू डू, फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। So YCM is equal to M1 Y1 plus M2 Y2 plus M3 Y3 plus M4 Y4 डिवाइड बाय टोटल मास 100 m। मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, ओके, पता है आपको कैसे आया है वो, राइट, सो नो नीड ऑफ राइटिंग अगेन दैट स्टेप। अभी चलो, अभी हमको निकालना है Y1 Y2 Y3 कोऑर्डिनेट निकालना है, राइट। तो Y1 पहले हम दिखाएंगे Y1 क्या है। तो ये ऑल दी सब जो भी क्यूब है सिमेट्रिक है, तो सबका जो सेंटर ऑफ पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, सेंटर पे, उसके सेंटर पे, पर्टिकुलर वो क्यूब का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, उसके सेंटर पे, ओके। तो लेट्स फाइंड कि ये जो पहला क्यूब है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, उसके सेंटर पे, बट ये टोटल कितना है 10, तो ये आएगा 5, तो दिस इज 5, तो 5 सेंटीमीटर। Y1 कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। अभी Y2 फाइंड कर सकते हैं। Y2 इज इक्वल टू Y2 का ये ऊपर का ये साइड कितना है 20 का आधा कितना होगा 10, तो यहाँ पे मिडल में आएगा, तो ये आएगा 10 सेंटीमीटर, बहुत सिंपल है। देन Y3 इज इक्वल टू ये कितना है बच्चों 30 का आधा कितना होगा 15, तो ये आएगा 15 सेंटीमीटर। देन Y4 कितना है वर्टिकल है, उसका साइड कितना है वो भी 40 का आधा कितना आएगा 20, तो यहाँ पे 20 आएगा, बराबर। बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे कैसे हमने ड्यूटी की थी, यहाँ पे कोऑर्डिनेट अलग है और यहाँ पे एक्स के कोऑर्डिनेट अलग अलग है, बिकॉज क्यूब ऐसे लगाए। हाँ, अगर क्यूब को एक के ऊपर ऐसे लगाए होते तब ये सब पॉइंट ऊपर आते वाई एक्सिस पे, और ये जो पॉइंट्स है, ये जो कोऑर्डिनेट ये एक्सिस पे आ जाते, बट दे हैव अरेंज द क्यूब इन द अलोंग दी ग्राउंड पे उन्होंने लगाए। नहीं तो क्या होता है, बॉक्स एक के ऊपर बॉक्स लगा रहता है। अगर एक्स के ऊपर बॉक्स लगाया तो क्या होगा कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ऊपर वर्टिकल पे होता। समझ में आ रहा है? सो हमेशा डायग्राम इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है, ओके। सो अभी बहुत हमारा काम बहुत आसान होगा यहाँ पे, ओके। सो लेट सब्स्टिट्यूट टू फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो वाई सी एम इज इक्वल टू क्या आएगा, m1 कितना है स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय y1 कितना है 5 प्लस m2 कितना है, m2 इज 8m मल्टीप्लाइड बाय y2 कितना है 10 प्लस m3 कितना है 27m, y3 कितना है 15 प्लस m4 कितना है, m4 इज 64 टाइम्स m मल्टीप्लाइड बाय y4 कितना है 20 डिवाइड बाय टोटल मास एज यूजुअल दैट इज 100 टाइम्स मास ऑफ m। बहुत सिंपल है, ओके। अभी इसको सॉल्व कर दे, इज द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, ओके। दिस विल बी 5m प्लस 8 10 जा 80m प्लस 27 इंटू 15। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन देखना पड़ेगा। 27 इंटू 15 आता है 405, ओके। प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 1280m, ओके, ए बी एम आएगा, डिवाइड बाय दी टोटल मास 100m। अभी ऊपर भी m है नीचे भी m है, तो mm कट हो जाएगा, राइट। तो हमारा y कोऑर्डिनेट आएगा YCM सेंटर ऑफ मास ऑफ y कोऑर्डिनेट विल बी दी 1770 डिवाइड बाय 100, ओके, 0 कट, तो आ जाएगा अपना 17.7 सेंटीमीटर फ्रॉम दी ओरिजिन। 17.7 मतलब यहाँ पे आएगा वो सब 20 और 15 के बीच में आएगा समवेयर हियर, ओके। बट माय डियर दिस इज नॉट अ स्क्वायर, दिस इज द क्यूब। तो क्यूब को 3 साइड्स होते हैं, राइट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो यहाँ पे हमने एक्स वाई निकाला तो जेड कोऑर्डिनेट भी होगा यहाँ पे, राइट। तो जेड कोऑर्डिनेट भी उधर वो साइड पे जस्ट लाइक अ वाई एक्सिस होगा, राइट। जेड कोऑर्डिनेट जो है दैट इज अलॉन्ग दी वाई एक्सिस, क्योंकि खाली एक्स साइड पे ही वो ऐसे बढ़ रहा है, इट इज इंक्रीजिंग अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस ओनली, यही साइड पे ही बढ़ेगा, लेकिन वो साइड पे क्या रहेगा, वो एज यूजुअल जो वाई है उतना भी जेड आएगा, राइट। तो सिमिलरली द जेड कोऑर्डिनेट विल बी सेम as that of the 17.7 centimeter.
बराबर। यहाँ पे जो जेड कोऑर्डिनेट होगा उसका दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि बॉक्सेस एक के बाद एक लगा रहे। द बॉक्सेस आर अरेंज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, नॉट अलॉन्ग द जेड एक्सिस, नॉट अलॉन्ग द वाई एक्सिस, इट इज अरेंज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। दैट्स वाई ये वाला बढ़ेगा, एक कोऑर्डिनेट बढ़ेगा। ओके, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हमने तीनों कोऑर्डिनेट निकाला, एक्स वाई एंड जेड। चलो और एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ये भी अनसॉल्व है, 7th वाला न्यूमेरिकल। ये थोड़ा अलग है जरा। ओके ओके, लेट अस लुक एट दिस। यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैज अ होल ऑफ रेडियस आर बाई 2, हाफ ऑफ द रेडियस, ड्रिल इनसाइड इट। एक होल बना है, एक स्पीयर है, उसके अंदर एक होल बना है जिसका रेडियस कितना है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल वन। वन एंड ऑफ द होल इज एट द सेंटर ऑफ द स्पीयर। जो ओरिजिनल स्पीयर है उसका सेंटर को, स्पीयर को एक साइड टच कर रहा है, राइट, एक एंड। वाइल द अदर इज एट द बाउंड्री, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग स्पीयर। ओके, तो यहाँ पे पहले हमको डायग्राम पहले इमेजिन करना पड़ेगा। सो लेट्स इमेजिन द डायग्राम। स्पीयर निकालेंगे बड़ा वाला। जब तक आप डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, दिस इज द सेंटर ओ, राइट, इसका सेंटर मैंने ओ लिया है, बराबर। तो इसको पहले मैं क्या करता हूँ, ज़रा कोऑर्डिनेट एक्स ले लेता हूँ। ओरिजिन ऑफ दिस विल बी द ओरिजिन, राइट, सेंटर ऑफ द ओरिजिनल स्पीयर आई एम टेकिंग एज अ ओरिजिन। ओके, अभी इसमें जो ड्रिल बना है, राइट, सो दैट ड्रिल, लेकिन वो ड्रिल जो होल बना है, सेकेंड होल बड़े वाले स्पीयर के अंदर, उसका रेडियस कितना है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ दिस। ओके, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ दिस आर बाई 2। ओके, मतलब क्या आएगा, जो उसका डायमीटर है उसका डायमीटर विल बी द रेडियस ऑफ दिस। अंडरस्टैंड। अगर मान लो ये रेडियस का ये स्पीयर का रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, सपोज कैपिटल आर इज 10 सेंटीमीटर, बराबर। तो R1 क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर, राइट। तो व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ दिस, इसका डायमीटर कितना आएगा, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स R1। समझ में आ रहा है क्या। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉल स्पीयर विच इज ड्रिल इनसाइड इट। तो डायमीटर ऑफ द स्मॉल स्पीयर विल बी डबल द रेडियस, सो इट इज द 10 सेंटीमीटर। सो डायमीटर ऑफ द स्पीयर विच इज ड्रिल inside the original sphere will be 10, which is equal to radius of the first sphere. So we can draw this sphere like this. अभी आपको समझ में आया होगा, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। मैंने क्या किया यहाँ पे, आई हैव टेकन द स्पीयर, आई हैव ड्रॉन द स्पीयर इन सच दैट द डायमीटर ऑफ दैट स्पीयर will be same as that of the radius of the big sphere। बड़ा वाला स्पीयर है उसका रेडियस के बराबर इसका डायमीटर होगा, तभी जाके उसकी रेडियस आधी होगी। दैट इज द गिवन इन द प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, दिस विल बी द, ये जो डिस्टेंस है बच्चों, दिस डिस्टेंस विल बी r बाई 2। ये कितना होगा, r बाई 2। ओके, और ये जो रेडियस है, दिस रेडियस विल बी कैपिटल R, दिस इज कैपिटल आर होगी। ओके, और आई एम मार्किंग दिस पॉइंट, ये जो सेंटर ऑफ बड़ा वाला स्पीयर है उसका सेंटर मैंने ओरिजिन ले लिया है। उन्होंने क्या पूछा है, अभी जो रिमेनिंग पार्ट है ये ड्रिल कर दिया, राइट। तो ये जो है इसको, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, और इसको मैं अलग करता हूँ ज़रा, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्पीयर, ओके, विच ड्रिल जो है, इसका हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है।
पहले क्या था, अगर बिफोर ड्रिलिंग द सेंटर ऑफ मास वाज लोकेटेड एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फीयर बिकॉज इट्स सिमेट्रिक, हमारे डेफिनेशन के हिसाब से, ओके। लेकिन अभी ये इतना मैंने टुकड़ा निकाल दिया, इतना स्फीयर निकाल दिया मान लो, तो क्या होगा, ये जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, ओके, एंड दैट विल शिफ्ट समवेयर हियर, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा समवेयर हियर, बिकॉज ये जो पोर्शन है इसका सेंटर ऑफ मास निकाला है, और सेंटर ऑफ मास क्या है, इट द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इन ऑर्डर टू स्टडी द लॉज ऑफ मोशन। तो ये डायग्राम आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस, ओके। तो ये होल है, दिस इज द होल, बराबर। सो ये जो रेडियस है, दिस पॉइंट डिस्टेंस, दिस विल बी आर, बराबर, दिस इज आर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। चलो अभी फटाफट क्या क्या एज्यूम कर लेते। लेट कैपिटल एम बी द मास ऑफ स्पीयर, कैपिटल एम बी द मास ऑफ स्पीयर, ओके। देन कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ स्पीयर, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ लार्ज स्पीयर, ओरिजिनल स्पीयर का जो रेडियस है वो आर लिया हमने। देन द रो इज द डेंसिटी ऑफ द स्पीयर, तो छोटा वाले का भी डेंसिटी वही रहेगा, डेंसिटी ऑफ स्पीयर, बोथ द स्पीयर, ओके। उसी से हमने पार्ट निकाला है ना, राइट। देन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास विल बी क्या होगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, बराबर। और व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। तो यहाँ पे सपोज अगर इफ यू इमेजिन द होल स्पेरिकल कैविटी, अगर उसको सेम इमेजिन किया टू फिल्ड विद द सेम मटेरियल एज दैट ऑफ द स्पीयर, वही मटेरियल हमने फिल किया, इमेजिन किया, राइट। सो द मास ऑफ स्मॉल स्पीयर क्या आएगा, ओके। तो पहले हम करेंगे मास ऑफ स्मॉल स्पीयर, ओके। पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ बिग स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ बिग स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, ओके, बड़ा वाला ओरिजिनल स्पीयर, दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। देन मास ऑफ स्मॉल स्पीयर, मास ऑफ स्मॉल स्पीयर, मास ऑफ स्मॉल स्पीयर, लेट दैट मास आई एम एज्यूमिंग एम डैश, उसको मैंने एम डैश लिया, ओके। एम डैश इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पीयर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, एम डैश इज इक्वल टू व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पीयर, लेकिन इसका रेडियस कितना है, रेडियस विल बी, मान लो यहाँ पे स्मॉल आर इज इक्वल टू r/2, मान लो मैंने उसका रेडियस स्मॉल आर लिया, ओके। तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू डेंसिटी, लेकिन स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल R/2, सो दिस कैन बी रिटन एज 4/3 पाई, अभी यहाँ पे R/2 का क्यूब लेना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी विच इज इक्वल टू, हाउ कैन वी राइट दिस, दिस कैन बी रिटन एज 4/3 पाई विल बी एज इट इज इंटू आर क्यूब डिवाइड बाय, अभी दो का भी क्यूब आएगा यहाँ पे, तो 2 का क्यूब कितना आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, सो दिस कैन बी रिटन एज, अभी मैं इसको फॉर माई कन्वीनियंट व्हाट आई विल राइट, इसके बाद क्या लिखेगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू 1/8, दिस इज एम डैश, एम डैश इज द मास ऑफ स्मॉल स्पीयर विच इज ड्रिल इनसाइड इट, ओके। तो देखो हमने यहाँ पे क्या निकाला, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, व्हाट इज दिस बच्चों, ये क्या है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द, दिस इज द मास ऑफ द ओरिजिनल स्पीयर, सो दिस कैन बी रिटन एज कैपिटल M/8, means we got the mass of the small sphere in terms of original sphere, okay. So mass of the small sphere in terms of original sphere is m/8, which we have assumed that m dash, हमने उसको m dash assume किया है, so the m dash is equal to m/8, okay, which is mass of small sphere, mass of small sphere। तो ये छोटा वाला स्पीयर का मास हमने निकाला,
Can we find the mass of the remaining part of the sphere? Yes, absolutely. We can find the mass of remaining sphere. So let's write the mass of remaining part of sphere. Mass of remaining part of sphere. Remaining part of sphere. Okay. And that mass, suppose m double dash, उसको मैंने m double dash लिया. m double dash is equal to, okay, इसका जो मास है this will be m double dash और इसका मास आएगा m dash और टोटल का कितना आएगा कैपिटल M. ओके, सो m डबल डैश विल बी कितना आएगा बच्चों, जो टोटल कितना था कैपिटल M माइनस m डैश विच विल बी कैपिटल M माइनस m बाय 8. ओके, विच इज इक्वल टू एलसीएम निकालो. यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे 1 आएगा तो एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा तो 8 माइनस 1 7/8 टाइम्स m. So mass of the remaining part of the sphere is 7/m. बराबर. अभी हमको फाइंड करना है द सेंटर ऑफ मास. ओके, तो यहाँ पे हम पहले कंसिडर करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट पहले एज्यूम करने पड़ेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे दो बॉडीज बन गया. अभी देखो यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट बॉडी एंड दिस इज द सेकेंड बॉडी. बराबर. तो पहला बॉडी का अगर मान लो यहाँ पे ओरिजिन दिया, राइट. सो व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द remaining part of the what is the origin of what is the x coordinate of the remaining part of the sphere, वो हमको एज्यूम करना है. एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द स्मॉल स्फीयर. ओके, सो यहाँ पे हम करेंगे पहले वी कैन राइट द ट्रीटिंग द होल एज अ स्फीयर विथ मास माइनस m बाय 8 लिया. x coordinate of the center of mass remaining sphere will be x coordinate of center of mass. Okay, x coordinate of the center of mass of remaining sphere will be, that is xcm is equal to हमारा फॉर्मूला क्या है, summation of mi xi divided by total mass mi. Okay, so which will be, this can be written as m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय टोटल मास आएगा mi. ओके, अभी यहाँ पे x1 क्या आएगा, द x1 विल बी हियर 0, राइट. तो यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट का x1 आएगा, x1 भी 0 और जो ये दूसरा सेकंड पॉइंट यहाँ पे होगा, राइट. हम क्या लेते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, वी आर टेकिंग द डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर. हम क्या लेते हैं, उसे सेंटर से लेते हैं. ओके, तो ये कितना आएगा बच्चों, the x2 will be r by 2, x2 will be r by 2 लेना पड़ेगा. m1 x1 और x2 will be r by 2. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, but x1 is equal to 0 and x2 is equal to r by 2. ओके, so xcm is equal to m1 कितना है, m1 मतलब मास ऑफ द रिमेनिंग स्फीयर. ओके, वो जो भी होगा बट इंटू एज x1 को इससे 0 क्या आएगा, m1 इंटू 0 प्लस m2 मतलब दिस इज m डैश, m2 मतलब m डैश आएगा. ओके, m2 इज इक्वल टू m डैश, दैट इज द मास ऑफ द स्मॉल स्फीयर. ओके, लेकिन m डैश कितना है, m डैश इज 7/8, 7/8 मल्टीप्लाइड बाय टाइम्स m. ओके, मल्टीप्लाइड बाय x2 कितना है, x2 इज r by 2. ओके, सो दिस इज व्हाट वी विल गेट. सॉरी m डैश नहीं आएगा, ये 1/8 आएगा. दिस विल बी m by 8, सॉरी 1/8 आएगा. द मास ऑफ स्मॉल स्फीयर, इज m by 8. सो m by 8 इंटू x2 कोऑर्डिनेट विल बी r by 2. x2 इज इक्वल टू r/2 आएगा. दिस विल बी r/2. सो हियर xcm इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा mr अपॉन 16. ओके, लेकिन टोटल मास रहेगा, सॉरी टोटल मास रहेगा यहाँ पे डिवाइड बाय टोटल मास क्या आएगा, द टोटल मास विल बी टोटल मास ऑफ द सिस्टम, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम पूछा है. सो दैट टोटल मास ऑफ द रिमेनिंग सिस्टम विल बी m डबल डैश. ओके, सो xcm इज इक्वल टू क्या आएगा, mr डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय
7/8 टाइम्स m, ओके 7/8 टाइम्स m, तो यहाँ पे m कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 8 ऊपर चला जाएगा, ओके सो 8r डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 7, 8 1 जा 8 2 जा, सो दिस विल बी r/14, r/14, सो xm विल बी r/14 आएगा, करेक्ट। लेकिन ये ओरिजिन से इधर आएगा एक्चुअली, तो निगेटिव लेना पड़ेगा, रिमेनिंग पार्ट है ना, तो ये ओरिजिन से इधर आए, ये जो मास है रिमेनिंग मास दैट इज जस्ट बियॉन्ड दी लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन, तो यहाँ पे हमको निगेटिव लेना पड़ेगा, ओके सो दिस विल बी द निगेटिव, तो ये भी निगेटिव आएगा, तो मतलब समवेयर हियर, यहाँ पे कोई पे तो लोकेट होगा वो, इट इज इन द एक्स साइड ऑफ द नेगेटिव एक्स साइड ऑफ द एक्सिस, सो सेंटर ऑफ मास विल बी लोकेटेड समवेयर हियर, ओके अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग टू दिस, तो यहाँ पे होगा वो समवेयर हियर, नॉट हियर, वो यहाँ पे लोकेट होगा, बस यहाँ पे y क्वांटिटी आएगा नहीं, y क्वांटिटी विल बी 0, ओके सो द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस स्फीयर इज दैट इज -r/14, ओके सो दिस इज द फाइनल आंसर, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। आई थिंक थोड़ा और समझा देता हूँ मैं यहाँ पे क्या किया हमने यहाँ पे, देखो बच्चों डेंसिटी लिया, मास मास इज वॉल्यूम टू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³, मास ऑफ स्मॉल स्फीयर इज m डैश इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर इनटू डेंसिटी, ये निकाला, देन वी गॉट द मास ऑफ द स्मॉल स्फीयर, मास ऑफ द स्मॉल स्फीयर हमको मिला m/8, जो m क्या था, कैपिटल M इज द ओरिजिनल मास ऑफ द स्फीयर, ओके मास ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर दैट इज m/8, उसके बाद हमको क्या निकालना है, मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्फीयर, जो बचा हुआ पार्ट है उसका जो मास है वो कैसे निकालेंगे, दैट इज लेट दैट मास इज m' इज इक्वल टू m माइनस m डैश, m डैश मतलब मास ऑफ द स्मॉल स्फीयर, वो सब्ट्रैक्ट करने का, तो m माइनस m/8 वी गॉट 7/8 m, 7/8 इज द मास ऑफ द रिमेनिंग स्फीयर, और डील करने के बाद उसके बाद हमको फाइंड करना है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्फीयर, लेट वी एज्यूम दैट x कोऑर्डिनेट, ओके x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग स्फीयर इज xcm इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi xi अपॉन समेशन ऑफ mi, यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दो बॉडीज है ना यहाँ पे, तो क्या आएगा मास ऑफ m1 x1 प्लस m2 x2, ओके m1 क्या यहाँ पे, m1 विल बी m डबल डैश मास ऑफ द रिमेनिंग स्फीयर इनटू x1 यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है दैट इज लोकेटेड अलोंग द ओरिजिन, सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन एज्यूम एज x0 प्लस m2 इंटू x2, m2 क्या है मास ऑफ द स्मॉल स्फीयर, ओके m2 इंटू x2 यहाँ पे जो है दैट x2 विल बी दिस पॉइंट, x2 विल बी दिस पॉइंट, x2 विल बी द, इसको छोटा कॉम्प्रेस करके फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा आएगा, ओके ये वाला राइट, तो ये पॉइंट जो है ये पॉइंट आएगा x2 विच इज r/2, ये डिस्टेंस, और ये जो पॉइंट है ये 0 0 आएगा, ओरिजिन आएगा, x1 को हमने ओरिजिन कंसिडर किया यहाँ पे राइट, एक कोई भी बॉडी को हम हमेशा ओरिजिन कंसिडर करते तब दूसरे बॉडी को फिर वो कोऑर्डिनेट निकालते, तो ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस विल बी द r/2, ये r/2 आएगा क्योंकि जॉइंट है ना राइट, इसका जो बाउंड्री है स्मॉल स्फीयर का बाउंड्री यहाँ पे टच हो रहा है राइट, ओरिजिन को टच हो रहा है, तो मतलब जो भी डिस्टेंस आएगा x डिस्टेंस दैट विल बी द r/2 हाफ ऑफ द रेडियस, तो यहाँ पे ठीक से लेना आपको, ये यहाँ पे अगर गलती हो गया तो आपका आगे का आंसर रॉन्ग आ जाएगा राइट, तो x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू r/2 राइट, अपॉन टोटल अपॉन दी मास ऑफ द रिमेनिंग स्फीयर, ओके यहाँ पे m डबल डैश आएगा, रिमेनिंग स्फीयर 7/8 एंड देन वी गॉट दिस, निगेटिव में क्या आएगा क्योंकि इफ दिस इज द ओरिजिन राइट, तो इधर लोकेट होगा, सेंटर ऑफ मास विल बी लोकेटेड इन दिस पोर्शन, और ये पोर्शन कहाँ पे होगा, और दैट विल लोकेट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ओनली राइट, तो यहाँ पे होगा समवेयर हियर, इट विल बी लोकेटेड जस्ट बिफोर दिस सेंटर, बिफोर दिस ओ, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, एंड विच इज इन द नेगेटिव क्वाड्रेंट, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आता है, दैट्स व्हाई वी विल गेट द नेगेटिव कोऑर्डिनेट, फाइन, चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके जैसा ही जो 8वां है आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है राइट, इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। जो 9th वाला है ना, 10th वाला भी सेम एज दैट ऑफ जो अभी मैंने सॉल्व किया वैसे ही 10th वाला भी सॉल्व करना है, इजी है।
अगर आपको चाहिए तो मैं उसका सोल्यूशन बाद में दे दूंगा, राइट। अभी एक काम करते हैं, 9th वाला सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा आज टाइम ज़रा ज़्यादा हो रहा है, बट लेट इट बी। सो लेट अस सॉल्व 9th। यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट दिया है टी, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। नाइन्थ वाला सॉल्व करते हैं। ओके, लुक एट द क्वेश्चन गिवन इन द क्वेश्चन बैंक। फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ग्रेविटी ऑफ थीन टी शेप प्लेट शोन इन बिलो फिगर। एज्यूम दैट द डेंसिटी ऑफ द प्लेट इज यूनिफॉर्म, राइट। सो प्लेट दिया यहाँ पे, तो लेट अस ड्रॉ द प्लेट हियर। टी शेप है, सो दिस इज 4 सेंटीमीटर दिया है, दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। डायग्राम विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम। ओके, तो देखो बच्चे यहाँ पे दो रेक्टेंगल फॉर्म हुए, राइट। और रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लोकेट होता है? पर्टिकुलर रेक्टेंगल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, राइट। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? समवेयर हियर, राइट। सो लेट दिस पॉइंट इज कैपिटल ए। और जो सेकेंड रेक्टेंगल है, वर्टिकल रेक्टेंगल है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सपोज दैट पॉइंट इज बी, मैंने उसको बी लिया, राइट। सो ये पूरा, ये कितना होगा फिर? 2। ये कितना होगा? 2, बराबर, ओके। और ये जो डिस्टेंस है दिस और ये जो डिस्टेंस है दिस इज 0.5 सेंटीमीटर। ये 1 है, दिस इज 1 सेंटीमीटर, ओके। ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो ये पूरा कितना है? 4 है, ये कितना? 1 है। तो 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3। 3 मतलब ये कितना होगा? 1.5 सेंटर पे, ये भी 1.5, बराबर। टोटल इज 4। 4 में से 1 माइनस करो, 1 सेंटीमीटर माइनस करो, बचा कितना? 3 का आधा करो, मतलब तो 1.5 इधर, 1.5 इधर, राइट। सो दिस इज व्हाट हम इमेजिन कर सकते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे फाइंड करना है हमको, व्हाट दे आस्क, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द थीन शेप प्लेट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सिमेट्रिक बॉडी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास विल बी सेम। जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो जो भी सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हमको यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को यूज़ करना है, ओके। सो यहाँ पे कुछ इमेजिनेशन करना है, राइट। सो द अपर रेक्टेंगल इज कैपिटल ए, लोअर रेक्टेंगल इज बी, उसका सेंटर ऑफ मास दिया है, राइट। सो लेट यहाँ पे क्या करेंगे? मास ऑफ ईच रेक्टेंगल लैमिना इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, ओके। सो एज्यूम दैट मास ऑफ ईच रेक्टेंगुलर लैमिना, लैमिना मतलब जस्ट लाइक ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ओके। रेक्टेंगुलर लैमिना, okay, is proportional to area, its area, okay, mass of each. So let K be the mass per unit area, okay. So let K be the mass per unit area, द के इज इक्वल टू एम अपॉन ए, ऐसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला, बराबर। अब यहाँ पे दो रेक्टेंगल है, तो आप हम यहाँ पे क्या करेंगे? M1 M2 लेंगे, ओके। सो वी कैन राइट के इज इक्वल टू M1 अपॉन यहाँ पे व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस, इसका एरिया क्या आएगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ
एरिया A1 इज इक्वल टू 4, इसका एरिया क्या आएगा, इसका भी एरिया A2 इज इक्वल टू ऑल्सो 4 आएगा, 4 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर के, जो भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ दिस फर्स्ट रेक्टेंगल कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सेकंड रेक्टेंगल क्या आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो k इज इक्वल टू M1/4 और k इज इक्वल टू M2/4, वो भी 4 ही आएगा, वही आएगा। ओके, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, M2/4, दिस विल बी ऑल्सो M2/4। नाउ टेकिंग x एक्सिस अलॉन्ग AB, अभी क्या करेंगे, वो जो AB है, दिस AB को हम x एक्सिस कंसिडर करेंगे, वो भले वर्टिकल दिख रहा है बट वी विल टेक इट एज अ x एक्सिस, इसको x एक्सिस लेंगे। तो इसको अगर x एक्सिस लिया तो ये हमारा ओरिजिन होगा, दिस विल बी ओरिजिन 0 0। ओके, अगर ये ओरिजिन लिया तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस विल बी दिस B पॉइंट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए से कितने डिस्टेंस पे B पॉइंट, अभी देखो यहाँ पे ये कितना अंतर है 2 सेंटीमीटर, और ये आधा है 2 और प्लस 0.5, तो ये आ जाएगा 2.5, तो दिस विल बी 2.5, और y कोऑर्डिनेट मैंने 0 लिया, y कोऑर्डिनेट 0 लिया बिकॉज आई एम कंसिडरिंग दिस, वो भले वर्टिकल दिख रहा है बट उसको अगर आड़ा किया, हॉरिजॉन्टल किया, तो ये मैंने x बना दिया, उसको एज्यूम किया मैंने, जस्ट फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आई एज्यूम दिस एज ए x एक्सिस, सो 2.50 और दिस इज 0 0, आई गॉट द 2 कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2। नाउ दिस कैन एक्ट एज अ 2 पार्टिकल सिस्टम, यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द 2 पार्टिकल सिस्टम, बहुत सिंपल है। ओके, सो लेट्स अप्लाई दैट द कंसेप्ट ऑफ center of mass of 2 particle system. Okay, so taking x axis along AB, taking x axis along AB. Okay, so here A will be origin and B will be 2.505, वो 2.5 कैसे बता दिया आपको। So the x coordinate of the center of mass, x coordinate of center of mass is as follows. So xcm is equal to m1 x1 plus m2 x2 divided by total mass m1 plus m2. Now so we can do this, just substitute the value here. Okay, तो m1 क्या आएगा, अब यहाँ पे m1 निकालते, m1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स k, और यहाँ पे m2 क्या आएगा, m2 इज ऑल्सो 4 टाइम्स k, राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा, m1 4 टाइम्स k मल्टीप्लाइड बाय x1 कितना है 0 प्लस m2 कितना है 4 टाइम्स k मल्टीप्लाइड बाय 2.5 x2 इज 2.5 डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज 4k प्लस 4k, तो बन जाएगा आपका 8k, राइट। ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 का 2.5 मतलब 10, सो 10k डिवाइड बाय 8k, k कट हो जाएगा 10/8 विच इज 5/4 विच इज 1.25 सेंटीमीटर। दिस इज द x कोऑर्डिनेट, बराबर। और ये इसका जो सेंटर ऑफ मास है अलोंग एक्स एक्सिस ही रहेगा, यहाँ पे कोई y कोऑर्डिनेट नहीं होगा। रिमेंबर दिस सेंटर ऑफ मास विल बी लोकेटेड अलोंग दिस लाइन ओनली, ये लाइन के अलोंग ही सेंटर ऑफ मास होगा, जिसका हर पॉइंट पे, हर एवरी पॉइंट ऑन दिस एक्सिस उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू दिस, राइट, and which is at what distance from this 1.25 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। तो पॉइंट ए से कितना डिस्टेंस पे हो 1.25 मीटर, तो ये 0.5 हो गया और ये 2 है, तो और आधा कितना ऐड करना पड़ेगा 0.75। तो बच्चों इट विल बी समवेयर हियर, यहाँ पे आएगा वो, द सेंटर ऑफ मास विल बी लोकेटेड हियर, ओके, विच इज एट 1.25 सेंटीमीटर, इट इज एट 1. ये 0.5 और यहाँ पे 7.5 ऐड कर दो, तो 1.25 सेंटीमीटर यहाँ से आएगा, ओके। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओके। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस, बहुत सिंपल है। ये 2 रेक्टेंगल ले लो, दोनों का एरिया फाइंड करो, एज्यूम करो, लेट द कीप द मास पर यूनिट एरिया, राइट, एंड टेक द ओरिजिन। हमारा जो कोई भी ज्योमेट्री के फिगर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे
ओरिजिन कंसिडर करना है, कोई भी एक्स एक्सिस ले लो, राइट। तो यहाँ पे हमने ए बी को एक्स एक्सिस लिया, उसके कोऑर्डिनेट लिया एंड वी जस्ट कंपेयर विद द मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम, वो कंसिडर करके वी हैव कैलकुलेटेड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। जो भी डाउट्स है, ये टॉपिक में काफ़ी लंबा लेसन था, 30 पेजेस टेक्स्ट बुक में है और हमको ऑलमोस्ट 24.5 लेक्चर लग गए इसको, राइट। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा था, सॉरी फॉर दैट, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी डाउट है आप व्हाट्सअप थ्रू मुझे कॉल कर सकते हो, जो भी फ्रीली आस्क, ओके। एंड अभी जो नेक्स्ट क्लास होगा दैट विल बी द ऑप्टिक्स। अगला जो लेक्चर होगा दैट विल पार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ द फिजिक्स, दैट इज द ऑप्टिक्स चालू मेरे। तो कल से हम ऑप्टिक्स के लेक्चर स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, ओके। चलो, ऑल दी बेस्ट, हैव अ गुड डे, टेक केयर।